along with knowing जो आपको दिखता है, जो नहीं दिखता, जो सभी के लाइफ में आता है, जैसे बुद्धा कहते हैं कि उस घर से राय का दाना लेके आओ जिस घर में मृत्यु ना हो। मृत्यु एक ऐसा, क्या बोल सकते हैं, एक ऐसी सत्य है जो हम जानना नहीं चाहते। Yeah, that's true. किसी और के घर में मृत्यु जरूर हो, लेकिन जब हमारे घर में आ जाता है तो एक कंफ्यूजन, सब कुछ उथल पुथल हो जाना। नेचर हमें बताता है, जैसा I can share my experience. In 2022 is when my father vacated his body, and my father's father, when he vacated his body, I remember that visual. It was in Vishakhapatnam. He was my dada was in a sleeping position. My father, we were normally coming by car and stopping at outside the house. We entered the house, and suddenly the father, who was smiling, suddenly cried as if like he was himself going to die, and in such a heavy howling position. And me as a small girl in 3rd standard, I looked at that visual and I was like, okay, so that's how you're supposed to react when someone dies. That's death. Oh, interesting. Acha. So when something happens to me, that's how I should react. As a child, for me, that was an imprint. And then I was always seeking answers because I was in a Christian school and I'm a Hindu. So I used to be very confused about religion. So that's actually how my journey came into Dhyana. Me coming into Dhyana actually came in because I was confused as a child, death, life, identity, all of that. So that's when I came into meditation. And when I got to know about through Dhyana and Jnana that there is no death. But again, death had never happened in my life at that point. It was more than 10 years. I didn't experience death ever. Yeah. And still, by reading, by Swadhyay, by Sajjan Sangatya, I was around developing this understanding, okay, there is no death. Reading Srimad Bhagavad Gita, I was every time, whenever he spoke about death, I used to be like, okay, so when it comes, maybe let's see. Maybe it'll come to me or not. And then 2022 is when my father vacates his body, and he passes away in my own arms. And there was not a teardrop. Because he passed away in awareness. I let him vacate in awareness. And there was no crying, and we actually celebrated. We had pulao, घर आके आराम से body को मैंने और मेरी बहन ने burn किया, and we burned the body, came home and enjoyed and celebrated it. Had pulao, ate nice food, laughed, and that's what I realized, that when Jnana happens, even something as extreme as death, it's not that you become mad, but because of awareness. So, can you please tell me about Shri Krishna जी ने काफी, मतलब मैं क्या ही बताऊं, श्रीमद् भगवद गीता में तो पूरा मृत्यु के बारे में श्लोक ही श्लोक हैं. तो आप थोड़ा लाइट डालिए कि कैसे एक ज्ञान से इस जो श्री कृष्ण जी बताते हैं कि डेथ को हम कैसे देखें. Yeah. He has given very beautiful analogy in 2nd chapter, verse number 13. He says, just like we change our clothes, similarly the soul also changes clothes. Just like from childhood to young age to old age, so we are changing our body. A 5-year-old body is no more there in 25-year-old body. So body is always changing. But a 5-year-old boy says, I am Bunty. At the age of 25, he says, I am Bunty. At the age of 50, he says, I am Bunty. So what is this I, which is still Bunty? Body is changing. So just like we change our clothes, so similarly we also change bodies. So death is nothing but a change of clothes. Usually we change our clothes. Say, I got this jute, or say cotton or khadi cloth. I change it at night time. Somebody wears maybe night dress. Similarly, this protein dress, we change as per karma. So death is nothing but the change of the cloth. That's it. But because people see body as the self, that's why they moan, they feel very sad. जैसे कि अब ऐसा हम रात को कपड़े चेंज करते हैं अपने, तो रात के समय कपड़े चेंज करते हैं, तो इस तरह से हम शरीर चेंज करते हैं. दैट्स इट. तो मृत्यु और कुछ नहीं है, ये बस कपड़े चेंज करना है. लेकिन जो व्यक्ति देह को ही आत्मा मानता है, उसको बोलते हैं देह आत्मा बुद्धि. तो जो देह को ही आत्मा मानता है, फिर अगर देह मरता है, देह को जलाया जाता है, तो रोना पिटना होता है.
पर हाँ फॉर अ वाइल अगर किसी को दुख होता है समझ में आता है, लेकिन अल्टीमेटली दुख से निकलने का तरीका भी यही है आत्मज्ञान, कि भाई वो सोल थी, सोल तो आगे बढ़ गई, वो जहाँ भी गई हम उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। सो इसलिए जब ये मान के चलें कि आत्मा जो है वो उसको मृत्यु कभी नहीं आती, एज नॉट कृष्णा सेज जीव भूत सनातना, इट इज इटर्नल, इट इज बिगिनिंगलेस, इट इज एंडलेस, एंड आई बिलोंग टू गॉड अल्टीमेटली. सो माई फादर, माई मदर, ऑल ऑफ अस, एक ना एक दिन हमें सबको शरीर छोड़ना ही है. तो शरीर जब छोड़ना ही है और शरीर का स्वभाव भी यही है, इसको स्वीकार करना यही सोल्यूशन है. जैसे आपने स्वीकार कर लिया, आप में कोई दुख नहीं था आपको, बिकॉज आपने ध्यान लगाया, आपने कहा आपको किस बात का ज्ञान था, या आत्मा तो आगे जा चुकी है. अब शरीर के लिए जो अंतिम संस्कार जो लिखे हैं कर्मकांड के अनुसार करेंगे. आई प्रे फॉर माई फादर इन हिज फर्दर जर्नी, दैट्स इट, बट ही स्टिल एग्जिस्ट. तो इसलिए मृत्यु को यही मानना चाहिए कि मृत्यु जो है सिर्फ कपड़ा चेंज करना है, दैट्स इट. लेकिन वो पूछ सकता है लेकिन मृत्यु अल्टीमेटली होती किसकी है, शरीर की या आत्मा की? किसकी होती है मृत्यु? शरीर की मृत्यु. शरीर की मृत्यु नहीं होती, क्योंकि मृत्यु उसकी होती है जो जीवित होता है. आज भी डेड बॉडी ही है ये प्रोटीन, ये कैल्शियम, ये मैग्नीशियम, ये हीमोग्लोबिन, ऐसा नहीं जिंदा हीमोग्लोबिन, जिंदा कैल्शियम, जिंदा मैग्नीशियम, जिंदा आयरन, ऐसा होता है नहीं. आज भी ये डेड बॉडी ही है. जैसे मेरा ये जैकेट है, इट इज स्टिल डेड, पर ये हिल डुल रही है क्योंकि मैंने इसको पहना हुआ है, दैट्स इट. उस तरह से आत्मा ने इस शरीर को पहना हुआ है, इस कैल्शियम, फॉस्फोरस इत्यादि को, क्योंकि यहाँ दैट्स अ लिविंग बॉडी. तो फिर उसकी ना फिर बॉडी की तो डेथ हो गई, ये अभी भी डेड बॉडी ही है, इट इज डेड. लेकिन आत्मा ने इसको पहना हुआ तो जीवित नजर आती है. पर ये तो एक्चुअली जो मरी हुई है वो मरती नहीं है. तो बोले हम शरीर की मृत्यु होती है, ये भी गलत है. शरीर की मृत्यु नहीं होती, शरीर पहले से मरा हुआ है एक्चुअली, इट्स ऑलरेडी डेड बॉडी. लेकिन हाँ सजा हुआ है थोड़ा सा, मान लो किसने आईलाइनर, लिपस्टिक अगर थोड़ा कर लिया, थोड़ा किसने हमने शैम्पू, कंडीशनर, दिस दैट, फ्रेंच बियर्ड, मक्खी दाढ़ी, सजा सकता है कोई शरीर को. लेकिन शरीर तो शरीर ही है, तो शरीर की मृत्यु ही नहीं होती. और आत्मा की मृत्यु होती नहीं, बिकॉज आत्मा तो सनातन है, आत्मा इज इटर्नल. इस तरह से देखा जाए एक्चुअली मृत्यु सिर्फ एक भ्रम है. बट एज पर डेफिनेशन ऑफ द डेथ जो कि भगवदगीता के अनुसार दी गई है, तो वो ये, जिस तरह से व्यक्ति अपने कपड़े बदलता है उस तरह से आत्मा का कपड़े बदलना, शरीर वाला कपड़ा, इसको बदलना, दैट्स इट. इसको हम मृत्यु बोल देते हैं. पर फ्रॉम एब्सोल्यूट पर्सपेक्टिव देखा जाए मृत्यु जैसी कोई चीज़ होती नहीं एक्चुअली. तो इस बात को स्वीकार कर ले, दुख खत्म. कम से कम किसी के जाने का दुख, या इवन मेरे खुद के मरने का दुख खत्म. यस. Wonderful. Have you experienced death in your life? और आपने कैसे? We always experience death because अगर आत्मा शरीर चेंज कर रही है, अगर उसको डेथ बोलते हैं, तो हम हमेशा शरीर चेंज कर रहे हैं. एक्चुअली देखा जाए इन एवरी 7 days मेरे कितने ही सेल्स हैं बॉडी के चेंज हो जाते हैं हफ्ते में, और इन एवरी 7 months सारी बॉडी के सारे सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं बाय न्यू सेल्स. तो बॉडी तो चेंज हो गई. तो इस तरह से डेथ वी आर ऑलवेज एक्सपीरियंसिंग. यस, पर लेकिन ये चेंज बड़ा स्लो होता है, तो इसको हम देख नहीं पाते. लेकिन ये इट इज़ हैपनिंग. कुछ समय बाद मेरी भी इसमें झुर्रियाँ आएंगी, मेरे भी जो है ललाट पे और झुर्रियाँ आएंगी, मेरे चश्मे का साइज़, ये नंबर जो और बढ़ जाएगा, मैं थोड़ा झुक भी जाऊँगा अगली बार जब आऊँगा, ऐसा हो सकता है. बट यस इट कैन हैपन. लेकिन ये चेंजेस दे आर ओनली पर्टेनिंग टू द बॉडी, दैट्स इट. तो इतना समय बस स्वीकार करना बस हमें, दैट्स इट. एंड देन वी कैन मूव ऑन इन लाइफ with more meaningful activities,